So good evening, Vidyasram Spacely, since you have a paper on 13th. So I'm trying to help you out for this small exams, you can say. And the topic which we have been discussing in the last class is refraction, the types of refraction, the causes of refraction, and also we'll focus on. So what is refraction? Cause of refraction. In the previous classes, we have seen the topic that is called reflection. That is bouncing back of light when striking a polished surface. This is refraction. Refraction, basically known as changing the path of light. We normally say light travels a rectilinear propagation of light. That's true. But light changes its path. And this bending of light when it moves from one medium to another. जब मैं मीडियम की बात कर रहा हूं तो फोकस किस पे है? When I'm talking about the medium, I'm talking that medium is different as long as the speed of light is different. For example, if the light is coming from vacuum, the speed of light in vacuum, V here stands for vacuum, is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. And suppose the sun rays, which is coming from vacuum, enter into the Earth's atmosphere. So speed of light in air is fractionally smaller than the speed of light in vacuum, and we can take it as 2.99 approximately. तो आप देख सकते हो कि अगर ये एक बाउंड्री है और ये है मेरा वैक्यूम और सपोज ये है मेरा एयर, इसमें मार्जिनली डिफरेंस है बट डिफरेंस है। ये रहा नॉर्मल, ये रहा इंसिडेंट रे। अगर ये मिरर होता, अगर ये पॉलिश्ड होता तो आपने देखा है कि ये बाउंस बैक करेगा, राइट? बट सिंस आपकी लाइट जो है यहाँ पर रे, जो पाथ ऑफ द रे है वो एक मीडियम से, वैक्यूम से, सपोज मैंने एयर बोला, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मैक्स दैट इज 3 into 10 raised to the power 8 meter per second से आप एयर के पास आ रहे जो मार्जिनल लेस है बट लेस है। तो जब भी, और जो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है या अपन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहे हैं और जहां से आ रहे हैं अगर वहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो हम उसको टेक्निकली फिजिक्स में बोलते हैं कि हम आ रहे हैं रेयरर से और डेंसर की ओर। इसको आप पॉपुलेशन से बहुत अच्छे से समझ सकते हो या ड्राइविंग से समझ सकते हो कि अगर हम जेएलएन मार्ग से, हाईवे से किसी क्राउडेड प्लेस में जा रहे हैं तो अपने को स्पीड ऑफ गाड़ी, ज्यादा कंफर्टेबल ड्राइविंग कहाँ मिलता है? जहां खुला हो। तो यहां पर उस कंसेप्ट में देख लो कि स्पीड ऑफ लाइट इज कमिंग, द रेज कमिंग फ्रॉम a higher speed medium to lower speed medium. I will say I am coming from rarer to denser. जब कभी भी rarer से denser में आएंगे light bend होगा, and bending of light phenomenon is called refraction. Why this bending is happening? Because I am getting there is two different medium. And medium किस term में हम बात कर रहे हैं? I am talking this difference in medium in terms of speed of light. So whenever I am coming from higher speed, physics में rarer से denser आएंगे। अगर ये different medium नहीं होता तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, right? लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि bending हो रहा है, क्योंकि refraction हो रहा है। और जब भी हम ज्यादा से कम की ओर आएंगे, जब भी rarer से denser में आएंगे, तो ये जो refracted ray है, डॉटेड दिख रहा है आपको, ये मेरा refracted ray है। This is my refracted ray and this is my incident ray. This is as usual, you know this. This is normal, perpendicular to the surface, the medium here, right? The boundary. So you can see that there is a bending of light, and this bending of light, the path of light bends from, the light is moving from one medium to another. This is called refraction. What is the cause of refraction?
your answer will be due to difference in speed of light in different medium. Next thing, the question can be asked that what do you indicate from this if angle of incidence is greater than angle of refraction? और ऑप्शंस दे देंगे आपको, तो आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा है, रिफ्रैक्शन से, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि आप रेयरर से डेंसर की ओर आ रहे हो, यानी कि क्लियर हो गया कि आप हायर स्पीड से लोअर स्पीड की ओर आ रहे हो। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्या पूछ सकता है, अभी आपको बोल देगा इफ ए लाइट path of light is coming from glass to air, glass to air, तो ग्लास में लाइट की स्पीड जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक सो 2.25, विल चेक दिस, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, ठीक है ना, जबकि एयर में कितनी होती है 2.9। मैं कहां से कहां आ रहा हूं इस बार, ग्लास से एयर, ग्लास से एयर को फिजिक्स में क्या बोलूंगा, डेंसर से रेयरर जा रहा हूं इस बार। क्राउडेड प्लेस से मैं निकला और हाईवे में गया, मेरी ड्राइविंग स्मूथली किधर होगी, जहां क्राउड कम होगा, यानी कि रेयरर। इन दैट केस इफ आई एम कमिंग फ्रॉम denser to rarer, I repeat, if I am coming from lower speed to higher speed, in that case my angle of incidence will always be less than angle of refraction. As a 10th standard online multiple choice questions, mirror तक हमने पूरा देख लिया, detailed uses and all are all important. Then we have a topic called refraction. Refraction का मतलब होता है bending, reflection का मतलब होता है bouncing back of light. Bending कब होगा, when light moves from one medium to another. Medium का यहाँ concept किस basis पे है, speed के basis पे। light का speed अलग अलग medium में अलग अलग होता है, maximum माना जाता है vacuum में। तो अगर मैं sun rays की बात करूँ, अगर मैं twinkling of star इल्यूजन की बात करूं, तो इसके पीछे रीजन यही है कि लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम हायर रेयरर, और जब वो अर्थ एटमॉस्फेयर में गिरता है, आता है, इट अंडरगोज मल्टीपल टाइम्स रिफ्रैक्शन, क्योंकि हर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में लाइट की स्पीड बदलते रहती है। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन। Now to elaborate with the help of graphical or video, I am taking the help of Manoj Academy videos, okay? And that video is going to help the language which I've shared with you. So I'm sharing that Manoj Academy videos. As you can see that, okay, this is an activity which is going to help us to understand better the refraction. So check this. Transparent glass like this filled with water. So pause the video here and go and get a glass of water. Are you ready with your glass of water? Next, I'll be showing an arrow on the screen, and you pause the video when you see the arrow and hold up your glass of water in front of the screen, something like this, and look at the arrow again and tell me, what do you see this time? Did you see the magic? Did you see the arrow changing its direction? It's happening due to bending of light. This is called refraction of light, and it's going to be the topic of this video. And then, as usual, we'll finish off with our top 3 questions on this. Composed of many rays of light. As you can see, each ray is traveling in a straight line. Now, for simplicity, let's consider a single ray of light. Now, how do I bend this ray of light? I can't just grab the ray of light and bend it, right? So what do you think I need to do to bend the light? You might be thinking of using a mirror. So a mirror certainly changes the angle by reflecting back the light. But what if I ask you, I want the light to continue downwards and still bend it? Then what do we need to do?
So you need a transparent material like glass or plastic here. Let's imagine there's a large glass block kept here, and I'm going to shine this torch on the glass block. Again, we'll consider a single ray of light for simplicity. Can you see the ray of light bending as it enters the glass block? Now, as you can see that rays of light are coming from air, moving towards glass. Speed of light in air and glass are varying. So a straight path of light due to change in medium is going to bend. This phenomenon is called refraction. And as I guided you just now, since the rays of light are coming from rarer to denser, you will find your angle of incidence is greater than angle of refraction. Observe this, please. This is known as refraction of light. There is also a partial reflection when the light hits the glass surface. But we'll ignore that for this video, and our focus will only be on refraction of light. So what have we learned till now? Light travels in a straight line as long as it's traveling only in one material. So as we saw here, as long as it's traveling only in air, it's traveling in a straight line. And then if you look only at the glass part, light is traveling in a straight line. But when light travels from one material to another, so here from air to glass, it bends. And this bending of light is called refraction of light. So here's the fancy definition of refraction of light. Refraction of light is defined as the change in direction of light when it's traveling obliquely from one medium to another medium. So what does this all mean? Let's break it down here. So change in direction means bending of light. Obliquely means the light is incident at an angle. And the word medium means material. For example, air, glass, water, these are all materials. You may also see the term optical material because optical refers to light. And for refraction, remember that the material needs to be transparent. Let's place the definition of refraction of light on our concept board. Have you seen any simple everyday examples of refraction? Do you want to learn to draw professionally? Now let's see, which I've explained to you that why this bending is happening. This glass block is doing to bend the light? The answer is it changes the speed of light. So let's say the speed of light in air is approximately 3 into 10 to the power 8 meter per second. Now is it approximately? Okay, if we compare with vacuum, it is slightly less than. So no need to get confused. Vacuum is 3 into 10 raised to the power 8. Air is approximately 2.99. So if an option comes, what is the velocity of light in air, and you get the option 2.99, must take that. And since glass is denser than air, it slows down the light when it enters the glass block. And let's say the speed here is 2 into 10 to the power 8 meter per second. So it is 2, okay? 2.25 as I was telling the approx. It's 2 into 10 raised to the power 8 meter per second for glass. And for water, it will be 2.25 into 10 raised to the power 8 meter per second. So this change in speed of light when it's traveling from air to glass causes the light to bend. And greater the change in speed, greater will be the bending of light. We've seen what is refraction, why refraction takes place. Now let's take a look how light bends during refraction. In this case, we saw light bends this way. But is it possible for light to bend the other way also? That is, here light is moving from rarer to denser, okay? Let's go ahead and take a closer look. Let's look at some terms first. This ray of light is called the incident ray. Do you know where is the point of incidence? That's right, it's here. The point where the incident ray hits the second medium is called the point of incidence. Again, an MCQ question can be, so watchful please. Now let's draw an imaginary line
perpendicular to this boundary between the two materials. This perpendicular line is called the normal. The light ray in the second medium is called the refracted ray. Can you see the incident light, instead of going straight, is bending towards the normal? The angle the incident ray makes with the normal is called the angle of incidence. And the angle the refracted ray makes with the normal is called the angle of refraction. When light is traveling from air to glass, like here, how are these angles related? That's right. Angle of incidence is greater than the angle of refraction. Here, air is the rarer medium, or to be more precise, optically rarer medium. And glass is the optically denser medium. We use the term optical density because it's different from normal density. Normal density is the heaviness or lightness of a material and is measured as mass by volume. But optical density measures how much a material is able to slow down light. And note that a material that is denser than another one need not be more optically denser than the other material. Craving a delicious cup of coffee? Get a tasty and creamy coffee. Medium, the speed of light decreases. The light bends towards the normal. And as you can see, angle of incidence is greater than the angle of refraction. Now, can we make the light bend away from the normal? The answer is yes. We just need to switch the two materials. So as you can see, this is our case 2. When light travels from a denser to a rarer medium, the speed of light increases. And as you can see, the light bends away from the normal. And the angle of incidence is less than the angle of refraction here. Let's pin these two cases of refraction on our concept board. So, as you can see that, right? Now let's see the case 3. There is another interesting case where the light is incident normally on the second medium. Now, this is again an MCQ which I have discussed in the class also, that in spite of two different medium, if the path or if the light is not bending, then why this is happening? As you can see, the incident ray is along the normal here. But even though the light is traveling from air to glass, can you see that there's no bending taking place? So we say there is no refraction happening here. But does the speed of light change when it enters the glass block? The answer is yes. As expected, the light will slow down when it goes from air to glass. But in this interesting case, there is no bending of light happening here. What is the angle of incidence here? That's right. Yes, so this is again a question, okay. When the light is moving from one medium to another and if bending is not happening, what is angle of incidence? So I hope you're clear, it's 0. It's 0. The angle between the incident ray and the normal is 0. What is the angle of refraction in this case? Correct. It's 0. The angle between the refracted ray and the normal here is 0. Let's place this special. So as you can see, 3 cases MCQ wise, it's good one, they can ask you. Now next come the laws of refraction, right? So observe this. The laws of refraction. The first law is the incident ray, the refracted ray, and the normal. Be careful to the language if a theory paper comes. To the interface, that means the two mediums should be there for refraction, lie on the same plane. The second law is very important from numerical point of view also, Snell's law. It states that ratio of sine, trigonometric term, sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is always constant
for a particular pair of medium. The two laws of refraction as a theory. First is the incident ray, the refracted ray, and the normal to the interface. That means the boundary where the two mediums are interacting. Okay, the two transparent medium at the point of incidence all lie on the same plane. Laws of reflection में हम क्या लिखते थे? The incident ray, the reflected ray, and the normal at the point of incidence. बीच वाला जो word है ना, to the interface of two transparent media. This is going to differentiate between the first law of reflection and refraction. Second is a very good one, Snell's law. What is this? The ratio of sine of angle of incidence upon sine of angle of refraction is a constant. मतलब अगर एयर से ग्लास में सपोज करो लाइट आ रहा है और आप अलग अलग एंगल्स रख रहे हो, इंसिडेंट रे को नॉर्मल के साथ अलग अलग एंगल्स में रखोगे तो आपकी अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगी, लेकिन मीडियम वही है एयर से ग्लास, तो आपकी अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बनेगी, लेकिन जो उनका रेशियो आएगा ना हर बार वो एक कांस्टेंट आएगा, फिक्स वैल्यू आएगा फॉर ए पर्टिकुलर. इस वर्ड को लिखना जरूरी है अगर हम थ्योरी पेपर दे. फॉर ए पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम, यानी कि वो जो दोनों मीडियम है वो अगर फिक्स है और मैं अलग अलग एंगल से अगर आ रहा हूं और अगर अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है लेकिन इनका रेशियो रिजल्ट सेम देगा और इस रेशियो को नाम दिया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसको आप न्यू से रिप्रेजेंट करते हो या n मान लीजिए एज ए सिंबल. So a brief explanation of the second law, that is Snell's law. The two medium, like these are the refractive index, okay, constant symbol, and one sine of angle of incidence is equals to n2 sine of angle of I2 लिखा मैंने यहाँ, I1 को हमने angle of incidence represent कर दिया और I2 को angle of refraction. So as you can see, I can write this n1 sine of angle of incidence is equals to n2 sine of angle of refraction. And as I told you, Snell's law क्या था? Sin I upon sin R. तो sin R को मैं इधर ले आया, n1 इधर चला गया. इसी को मैंने इस तरह से लिखा. ये MCQ का क्वेश्चन बन गया कि what does this represent? इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको मैं पढ़ूंगा. This constant is written as n21 means refractive index of medium 2. refractive index का जनरल मीनिंग क्या है अभी और देखेंगे. refractive index of medium 2 with respect to refractive index of medium 2 with respect to 1. What is this? We'll explain. And also this is known as relative refractive index. जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में refractive index के दो टाइप होंगे, एक होगा एब्सोल्यूट और एक होगा रिलेटिव. रिलेटिव का मतलब कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब लाइट कहीं से भी कहीं आ सकता है. तो अगर किसी को बहुत से बुक में ऐसा लिखा हुआ दिखे, इट कैन बी लाइक दिस, सपोज इफ इट इज लाइक दिस, अगर ऐसा, इसको 21 मत पढ़ना, इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो इस सिंबल के नजदीक है उसकी वैल्यू बता रहा है विथ रेस्पेक्ट टू जहां से लाइट आ रहा है, दैट इज मीडियम 1. और इसी को अगर ऐसा लिखता तो मैं पढ़ता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2. और MCQ के लिए अगर किसी ने तुमको इसकी वैल्यू दे दी, सपोज 1.4, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 2 with respect to 1 is 1.4, और तुमसे simple 10 standard में पूछ लिया कि what will be the refractive index of medium 1 with respect to 2, you don't have to do anything, simply result आया उसका reciprocal कर देना, ये बनता है. So here comes refractive index. क्या है? It is a characteristic property of the medium whose value depends only on nature of material of the medium and wavelength. जैसे किताब में पेज नंबर देखते हैं, चैप्टर नंबर देखते हैं, एक इंडेक्स होता है, उसी तरह ये
इंडेक्स है जो आपको ये आइडिया देता है। Now there are two types of refractive index, एक का नाम है एब्सोल्यूट। जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है तो आप समझ लेना वो एब्सोल्यूट है, रिलेटिव वर्ड को वो प्रिस्क्राइब करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि आपका न्यूमरेटर में ऑलवेज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम रहेगा जो कि मैक्सिमम है, और एयर का नियरली इक्वल होता है, इसलिए एयर भी लिखा हुआ रहता है, तो नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड। अपॉन स्पीड ऑफ लाइट एंटरिंग इन एनी मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में न्यूमरेटर में बॉस बैठे हैं, दैट इज वैक्यूम। वहां से आप जहां भी जाओगे आप ऑलवेज डेंसर के पास ही जाओगे, ऑलवेज बेंडिंग होगा, और बेंडिंग होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा होगा, बिकॉज यू आर ऑलवेज मूविंग फ्रॉम rarer or optically rarer to optically denser. Then this is called absolute RI, refractive index. और यहां से एक चीज और क्लियर हो जाता है कि जितना ज्यादा हायर द RI मतलब absolute, okay, higher the absolute refractive index, you can say more the denser medium as compared, किससे कंपेयर कर रहे हैं अपन? ऑब्वियसली टू द मोस्ट rarer medium, that is vacuum. तो कैसा क्वेश्चन आएगा इसमें? रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट केबीसी स्टाइल का क्वेश्चन आता है। तो आपको पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, जितना बड़ा आरआई की वैल्यू होगी, आरआई मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां मेरा बॉस है न्यूमरेटर में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो वहां से मैं कहीं भी जाऊंगा, जितना ज्यादा दोनों के बीच का अंतर होगा ना उतना आरआई की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि न्यूमरेटर हरदम बड़ा रहने वाला है। तो जितना गैप होगा दोनों के बीच में उतना बड़ा आरआई होगा, और जितना बड़ा गैप हो रहा है इसका मतलब उतना ज्यादा दोनों में डेंसिटी का फर्क है, रेयरर से डेंसर की ओर जा रहे हो। जितना ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कम होता है हम उसे डेंसर कहते हैं। सो अगर आपकी कंसेप्चुअल की बात की जाए 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से, सो हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज ऑप्टिकली डेंसर हो जाता है इन दैट मीडियम। तो अगर आपको एग्जामिनर दे दे 1 2 3 4, एयर का दिया 1.0003, ग्लास का 1.52, ये लर्न नहीं करना है, वाटर का 1.33 और डायमंड का 2.42, और बोल दिया अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेयरिटी। रेयरिटी का मतलब यहाँ पर आप कंसेप्ट क्लियर कर लें। रेयरिटी का मतलब होता है कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, इंक्रीजिंग, तो आपको लोअर स्पीड से हायर स्पीड जाना है। तो अगर मेरे को ये कंसेप्ट क्लियर है तो मुझे पता है कि जिस बंदे का आरआई बड़ा है उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है तो नंबर 1 ये रहेगा। उससे बेटर पोजीशन में कौन है? ये। उससे बेटर में कौन है? ये। एंड फाइनली आप देख सकते हो नियरली 1 के बराबर है। Higher the RI, lesser the speed of light in that medium when entering from the vacuum. तो अगर मैं 4 RI आपको दे दूं और मैं बोलूं इसको अरेंज करो in terms of speed of light, तो आप समझ लीजिएगा कि जिस बंदे का RI बड़ा है उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम हो रहा है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका बोला ये ध्यान देना, अगर मैं यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी बोलता ना, डेंसर, तो ऑब्वियसली डेंसर का इंक्रीजिंग ऑर्डर वही रहेगा जो आर आई का है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए सुपर हिट है, बने। नेक्स्ट इज रिलेटिव। देखो रिलेटिव का मतलब, जैसे अपने को रिलेटिव डेंसिटी था 9th में, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर पल बदलेगा। यहाँ पर फोकस किस चीज में करना है कि हम जहां से आ रहे हैं, ऑप्टिकल रेयरर हो ऑप्टिकल डेंसर, उससे मतलब नहीं है। अगर मैं एयर से ग्लास आ रहा हूं
तो मेरा टॉप में जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और जहां इंटर कर रहा हूं वो जाएगा डिनोमिनेटर में। और ये कंपलसरी नहीं है कि मैं ऑलवेज एयर से ग्लास जाऊं, मैं ग्लास से वाटर भी जा सकता हूँ, वाटर से एयर भी जा सकता हूँ, ये चेंजेबल है। जबकि एब्सोल्यूट में न्यूमरेटर का कब्जा किसने कर रखा था? वैक्यूम का स्पीड ऑफ लाइट में, राइट? सो दैट्स व्हाई रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैंने अभी ऐसा लिखा, कैसा लिखा? दिस इज द सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 1, तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? जैसे मैंने पहले भी बताया, this means that speed of light in medium 2 with respect to speed of light in medium 1, मतलब मैं 2 में आ रहा हूं 1 से, और अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो मैं बोलूंगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। और 10th स्टैंडर्ड में ये जो मैंने रिलेशन लिखा, इसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल आ सकता है कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 अगर 1.4 है, then what will be the refractive index of medium 1 with respect to 2? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी आंसर दे दे उसका रेसिप्रोकल कर देना, ये बनता है रिलेशन से, ठीक है? Now to brief out one definition, that is called lateral displacement. एक था lateral inversion, कंफ्यूज मत होना, lateral inversion मिरर में था राइट लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट राइट, ये है lateral displacement। सपोज ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये रहा मेरा इंसिडेंट रे कहां से आ रहा है? रेयरर से, एयर से, ग्लास के अंदर। तो अभी अभी आपको सिखाया था बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल, तो ये कौन है मेरा? रिफ्रैक्टेड रे। नाउ टू रिफ्रैक्शन थ्रू बोला, राइट? एक बार एयर से ग्लास में आए, वापस ग्लास से एयर में आ रहे हो, तो ग्लास से एयर में आने के लिए सपोज करो ये रिफ्रैक्टेड रे बिहेव करेगा इस पॉइंट के लिए इंसिडेंट रे, और अब आप डेंसर से रेयरर में जा रहे हो, तो आपको बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो छोटा हो जाएगा, और इस रे को जो फाइनल निकल रहा है इसका नाम होता है इमर्जेंट रे। नाउ व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट? ये देखो, इमर्जेंट रे को मैंने पीछे प्रोड्यूस किया, इंसिडेंट रे को मैं आगे ले गया, सपोज दोनों कभी नहीं मिलेंगे, और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस between incident ray and emergent ray in a rectangular glass slab is called lateral displacement। हो सकता है आपको एमसीक्यू में डेफिनेशन दे दे, पहचानो किसके बीच, ठीक है? तो छोटा सा न्यूमेरिकल जिसमें आएगा, लाइट ट्रेवल्स थ्रू वाटर विथ ए स्पीड, लाइट में स्पीड ऑफ लाइट दे दिया, क्या पूछा आपसे? RI ऑफ वाटर। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है तो मैंने आपको बता दिया था एब्सोल्यूट होगा, और एब्सोल्यूट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पूछ रहा है? ऑफ वाटर, राइट? ठीक है। नाउ स्नेल्स लॉ भी देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देखा, ये क्लियर हो गया कि बंदा एब्सोल्यूट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट में बॉस कौन रहेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन जो भी बंदा है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब आप बोलोगे सर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो दिया हुआ नहीं है, देगा भी नहीं एग्जामिनर, दे भी दे दे क्योंकि कॉमन है तो हमें ये याद रहना चाहिए, which is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नीचे कौन है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसको जब हम सिंपल सा मैथ्स करेंगे तो सपोज करो हमारा सॉल्व करके आ गया 1.33 यूनिट, क्या होगा? नो यूनिट, क्योंकि रेशियो में कैंसल्ड आउट। ये छोटा सा न्यूमेरिकल एमसीक्यूज लाइक बनता है, एक बार देख लो। ओके, ये न्यूमेरिकल रेगुलर है। अब अगर हम
एमसीक्यूज दे रहे हैं तो बहुत छोटा सा ट्रिक भी है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड अल्कोहल, ये होते ही क्लियर हो गया कि भैया ये तो एब्सोल्यूट के साथ ही जाएगा, गॉस वैक्यूम है। बार बार स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लिखने की जगह मैं बता दूंगा कि हियर स्मॉल अल्फाबेट सी स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आपको पूछ क्या रहा है, ग्लास का किससे कंपेयर कर रहा है, अल्कोहल, यानी कि क्लियर हो गया कि रिलेटिव है ये बंदा, क्योंकि ग्लास और अल्कोहल है तो रिलेटिव है, ठीक है। कैसे करा जाए, नॉर्मल सीबीएसई तरीके के हिसाब से, तो हम बोल देंगे लेट speed of light in glass is x meter per second and speed of light in alcohol को हमने मान लिया y meter per second. Now we know that absolute refractive index किसका निकाल रहे हैं, सपोज पहले में ग्लास, बॉस कौन है, मैंने क्लियर कर दिया सीबीएसई पेपर में समेटिव में कि भैया अल्फाबेट सी को मैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मांग रहा हूं और नीचे कौन आएगा, एक्स लिख दूं, दिस क्लियर आमोद, ओके। नाउ दिस इज एन अल्कोहल लिख दूं, दैट इज कैन आई राइट सी अपॉन वाई, Mehul Khandelwal, hopefully you are getting with it, right? This is especially for Vidya Ashram, they have a paper today, I should say now, because it's 3 o'clock, 3 a.m. right now. So now, this is okay. Now, what are we looking for? So, yahan se, can I find x? Definitely. So, can I say x is c upon this and y is c upon this? Now, what are we looking for? We are looking for refractive index of glass with respect to alcohol. Look at here, refractive index किसका ढूंढ रहे हैं हम, ग्लास का, किससे, अल्कोहल का। तो न्यूमरेटर में कौन आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन अल्कोहल, राइट, क्लियर है, अल्कोहल, अल्कोहल वाला बंदा कौन है, ये रहा, कैन आई राइट सी अपॉन दिस, और इसकी वैल्यू तो दी हुई है, चलो बाद में बैठा लेंगे, अपॉन सी अपॉन दिस, ये देखो इसलिए सी से सी कट गया, ये बंदा मैथ से ऊपर जाएगा, ठीक है। सो कैन आई राइट दिस, हम किसका ढूंढ रहे थे, वी आर लुकिंग फॉर ग्लास, चल रहा है सही है, ये रहा अल्कोहल, क्या आया मेरे पास देख लो, Ng अपॉन NaL, ठीक है, और Ng कितना दिया हुआ था आपके पास, 1.5 अपॉन 1.36, ये हुआ सीबीएसई मेथड। अगर मुझे एमसीक्यू देना है तो ट्रिक देख लो, जिस बंदे का आरआई पूछा है ना, ग्लास का पूछा, तो ग्लास वाला जो एब्सोल्यूट है उसको भेज देना न्यूमरेटर में, और जिससे कंपेयर किया उसका वाला एब्सोल्यूट को भेज देना डिनोमिनेटर में। आई रिपीट, अगर मैं एक ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टिक करने जा रहा हूं तो आई विल नॉट वेस्ट दिस मच ऑफ टाइम। मेरा ट्रिक क्या कहता है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है उसकी वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वाला न्यूमरेटर में बैठा देना, जिससे कंपेयर कर रहा है, यहाँ अल्कोहल है और अल्कोहल का एब्सोल्यूट क्या था 1.36, उसको डिनोमिनेटर में बैठा देना, बिल्कुल खत्म। ये सब कब करेंगे, जब हम सब्जेक्टिव पेपर देंगे। मैंने क्या किया, मैंने अल्फाबेट सी को फिक्स कर दिया कि मुझे पता ये कटेगा, मैंने स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को x मान लिया मीटर पर सेकेंड और अल्कोहल को 1। पहले मैंने एब्सोल्यूट को फॉलो किया, एब्सोल्यूट में ग्लास का दिया हुआ था, मैं यहाँ पर 1.5 डायरेक्ट बैठा सकता था, बट आई वाज एक्सप्लेनिंग यू। तो c अपॉन ये दिख रहा है c अपॉन x, x क्या है आपको पता है, c अपॉन y। आई वाज लुकिंग फॉर x एंड y, आई गॉट वेरी सिंपल मैथ्स, ये तक आ गया। अब मुझे चाहिए क्या, ग्लास का। तो ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू अल्कोहल मुझे कहता है
कैसा कि स्पीड ऑफ लाइट कहां से कंपेयर कर रहा हूं मैं, अल्कोहल से, वो आएगा मेरा न्यूमरेटर में, और जहां जा रहा हूं वो आएगा डिनोमिनेटर में, और बाय मैथ। वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा थॉट देना, ट्राई करना। और ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव के लिए क्या ट्रिक लगाया, जिस बंदे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है उसका एब्सोल्यूट को न्यूमरेटर में बैठा देना, जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको डिनोमिनेटर में बैठा देना। So let's try a bit fast because to just help you out in the exams of lens focused will be convex. मिरर में कॉन्केव में फोकस किया था, लेंस में कॉन्वेक्स करेंगे। कॉन्वेक्स का दूसरा नाम होगा कन्वर्जिंग लेंस। और ये जो लेंस है ये दो मिरर के कॉम्बिनेशन से बना है। सिंस दो मिरर है इसलिए देखो दोनों के अपने अपने फोकस है, एक का नाम f1 है तो एक का नाम f2 है। डबल ऑफ f1 2f1 यहाँ नाम है और वहां पर 2f2 है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपका ऑब्जेक्ट देखो कहाँ है, अगर मैं मिरर से भी रिकॉल करूं तो मैं कहूंगा मेरा ऑब्जेक्ट, सपोज अगर ये मिरर होता तो मैं कहता मेरा ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड c है। डन। सिंस ये रिफ्रैक्शन फेनोमेनन है, क्यों? क्योंकि मीडियम में बदलाव आपको दिख रहा है, मीडियम चेंज, तो यहाँ जो इमेज रियल होगा वो किधर बनेगा, ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस और राइट हैंड साइड। तो यानी कि यहाँ जो इमेज मिलता हुआ दिख रहा है वो किधर बनेगा, राइट हैंड साइड में बनेगा। और जो इमेज मिलता हुआ बनता है, दिखता है, ओके, उसका नाम हमें पता है क्या देना है, रियल इमेज देना है। अब आता है कि सर दो फोकस है, किसको कंसीडर करके हम साइन कन्वेंशन में मदद लेंगे? तो ड्यूरिंग द साइन कन्वेंशन वी विल टेक केयर ऑफ दैट फोकस जहां से रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन निकल रहा है। तो आप देख सकते हो वो फोकस राइट हैंड साइड में है, राइट। तो जो फोकस को कंसीडर करना है उसको आप दिमाग में f2 रख लो, और आपको पता है कि जो राइट हैंड साइड में होगा वो पॉजिटिव साइन कन्वेंशन होगा। और कॉन्वेक्स लेंस हो, या अगर आपको याद हो कॉन्वेक्स मिरर, ये तरीका है याद करने का, दोनों का f, जैसे उधर f नाम था इधर f2, दोनों के साइन होंगे पॉजिटिव। ठीक है ना? अगर हम छोटा सा बात करें तो u में कभी भी कंफ्यूज मत होना, u नो दैट v दो होते हैं, राइट, एक बार रियल। इस बार आप खुद देख सकते हो लेंस में रियल राइट में बन रहा है, इसलिए पॉजिटिव लिखिए और आगे रियल दिमाग में सेट कर लीजिए। तो ऑब्वियसली सर नेगेटिव किधर बनेगा, नेगेटिव ऑन द सेम साइड बनेगा। तो कहां रखेंगे सर, वर्चुअल। यहाँ f जिसको हमने f2 बोला है, राइट, f2 नाम दिया है, वो f2 राइट में है, तो बंदा कैसा है, पॉजिटिव। मिरर को लेकर चलना आसान लगेगा क्योंकि u v का मतलब तो जान चुके हो, साइन बैठाना है। राइट हैंड साइड में अगर ऑप्टिकल सेंटर का है तो पॉजिटिव है, ऊपर है तो पॉजिटिव है। रियल इमेज लेंस में किधर बन रहा है आप खुद देख सकते हो, ड्यू टू रिफ्रैक्शन it is going to be formed on the right hand side, so there must not be any confusion. Real image for lens is on right hand side, that's why positive. साइड में मिरर का नोट लिखो तो मिरर में कॉन्केव मिरर को बॉस बना लो। रियल इमेज मिरर में लेफ्ट था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, तो हमने उसको नेगेटिव साइन दिया था, तो यहाँ पॉजिटिव दे रहे हैं किसको, रियल को। तो यहाँ पर नेगेटिव कौन होगा, फिर वर्चुअल होगा। दो f है सर, कैसे रिकॉल करें, वो f जो आफ्टर रिफ्रैक्शन आप देख रहे हो फोकस से पास होगा। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये फोकस से पास हो रहा है, दिस इज व्हाट वी सपोज, लाइक दिस इज सपोज हियर f2, ओके। और वो राइट हैंड साइड में है, दिख रहा है। और मिरर को भी याद करना है, कॉन्वेक्स मिरर का भी जो फोकस था वो राइट हैंड साइड में ही था, इसलिए ये बंदा आपको तुरंत ही क्लियर हो जाएगा, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कॉन्वेक्स वर्ड f+।
यू कभी परेशान मत होना, ऑलवेज नेगेटिव साइन कन्वेंशन। वी दो होते हैं, बिल्कुल दो होते हैं। रियल इमेज यहाँ पर कहाँ बन रहा है, राइट हैंड साइड में बन रहा है, तो हम उसको पॉजिटिव देंगे एज पर साइन कन्वेंशन रूल। तो नेगेटिव किसे देंगे सर, वर्चुअल को देंगे। यू हो गया, वी हो गया, F2 हो गया, फिर आपके पास था HO। HO आपको कभी परेशान नहीं करेगा, ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, इसका भी काम हो गया। अब सर अपने पास आता है सर 2HI, बिल्कुल आता है 2HI। रियल इमेज हरदम इन्वर्टेड होता है, ये हमें क्लियर है, और इन्वर्टेड हरदम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है, ये क्लियर है। तो वहां भी वही था जो यहाँ है, दैट इज नेगेटिव अगर है तो रियल है, तो पॉजिटिव को हमने संभाल लिया, वर्चुअल है। बिना रटे गेम हो सकता है, यू में पर प्रॉब्लम आने ही नहीं देना है। कॉन्वेक्स लेंस यहाँ हीरो बन रहा है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस वो बंदा है जो हमने जो ट्रिक बताया था, वो V भी होगा, E भी होगा, R भी होगा, I भी होगा, महेंद्र भी होगा, सिंह भी होगा और धोनी भी होगा। ये चीज वहां पर किसके लिए दिखा था, अगर आप रिकॉल कर रहे हो तो आप कहोगे सर ये चीज मुझे वहां पर दिखा था कॉनकेव मिरर के लिए, राइट। तो यू में परेशान नहीं होंगे। अब वी में आ जाते हैं, भैया इमेज रियल भी होता है, वर्चुअल भी होता है। रियल लेंस में राइट में बने, और जो भी राइट है ऑप्टिकल सेंटर के वो प्लस है, खत्म। तो जब इसको पकड़ लिया तो ये पकड़ लिया है। दो फोकस है, वो फोकस जहां से रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पास हो रहा है उसको कंसीडर में लिया जाता है, इसलिए पॉजिटिव। HO नेवर प्रॉब्लम, ऑलवेज हैव अ प्रिंसिपल एक्सिस, positive. HI I have got sir 2, definitely 2. One is for real, one is for virtual. Real is always going to be below principal axis, so negative. So virtual जब भी बनेगा ऐसा बनेगा, इधर बनेगा, तो it will be positive, right? Then we come again. What is the next? We have got magnification formula. सर मिरर में क्या था, आप याद करिए, लेंस में लिख रहा हूं, देखो HI अपॉन HO इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा V अपॉन U, और वहां क्या था, आया याद, यस, वहां था HI अपॉन HO इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट V अपॉन U। अगेन कभी भी अगर M सॉल्व करके, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, अगर प्लस आ गया तो बंदा वर्चुअल है, और अगर माइनस आ गया तो बंदा रियल है। और वहां मिरर फॉर्मूला था तो यहाँ लेंस फॉर्मूला होगा, ज्यादा बदलाव नहीं है। 1/f इज इक्वल्स टू, राइट। कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर बॉस बना हुआ है, तो सर कॉन्केव लेंस का क्या हो रहा है, कॉन्केव लेंस का साइन कन्वेंशन कैसा होगा, सो अभी देख लेते। कॉन्केव लेंस का दूसरा नाम, एमसीक्यू में बहुत बार ऐसे बॉक्स बना देंगे, ऐसा बॉक्स बनाकर देंगे और ऐसे कर देंगे, ठीक है, बोलेंगे आइडेंटिफाई द मिरर लेंस, तो मिरर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आप देख सकते हो बाउंसिंग नहीं है, तो कंफ्यूजन खत्म, मिरर नहीं है। लेंस में दो हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, आपको दिख रहा है रेज जो है वो दूर हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, तो बी केयरफुल, द आंसर इज कॉनकेव लेंस। दो फोकस है, वहां भी था, ये जो डाइवर्ज हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहां से निकल रहा है, और वो जो फोकस यहाँ कंसीडर करेंगे साइन कन्वेंशन के लिए वो कौन होगा, F1। इसलिए कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन क्या रहेंगे, माइनस में। और अगर आपको ध्यान हो, जो फोकल लेंथ था कॉन्केव मिरर का, कॉन्केव मिरर का, वो भी नेगेटिव। ना कॉन्केव लेंस, वहां पर कॉन्वेक्स मिरर ये काम कर रहा था, कौन सा, VED, वर्चुअल, इरेक्ट एंड
डिमिनिश ऑलवेज। सो यू में तो कभी परेशानी नहीं होने का बाबा, खत्म। नाउ कौन सा इमेज बन रहा है भैया? वर्चुअल। किसमें? लेंस में। अभी अभी हमने बताया वर्चुअल इधर ही बनेगा, इसलिए भाई साहब नेगेटिव ब्रैकेट में वर्चुअल, दो v की जरूरत ही नहीं है। f अभी अभी लिख दिया, राइट, लेट इट बी a small f, focal length that is again negative। इतने सारे नेगेटिव आ रहे हैं सर, कोई बात नहीं यार, ये लो, ये तो है ना पॉजिटिव, एक और पॉजिटिव चाहिए, ये लो, है पॉजिटिव, क्योंकि VD इरेक्ट, इरेक्ट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर। तो भैया जिंदगी में नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव भी होता है, देखने वाली बात है। यहाँ भी है, U नेगेटिव है, ठीक है सर, V नेगेटिव है, ठीक है, F नेगेटिव है, कोई बात नहीं, पॉजिटिव भी तो कुछ है यार, राइट। This is definitely going to help you to sort out a basic numericals for your normal paper. So what is left after this? Let's see. Just to brief out, this is the last one to understand. Just go through the video slowly. Hopefully for a normal exam, it will definitely going to help you. Last is power of lens. आप लोग सब चश्मा लगाते हो, उसका अपना एक पावर होता है, और आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव साइन कन्वेंशन की वजह से बोला जाता है कि कौन सा लेंस लगा रहे हो और कौन सी बीमारी। फॉर्मूला क्या है? P is reciprocal of F, F for focal length. Now confusion level 1. SI unit, definitely SI unit is diopter, किसका? पावर ऑफ लेंस का। अगर केवल पावर बोलता ना SI यूनिट ऑफ पावर, तो व्हाट लिखना, diopter मत लिख देना। This is power of lens, that is diopter। मेजरिंग यूनिट क्या होता है? पावर ऑफ मेजरिंग, किसमें मेजर करते हैं? तो मीटर। फोकल लेंथ किसमें रहेगा? सेंटीमीटर। तो अगर मैं मीटर में आंसर निकाल लूं और डायोप्टर में लिखना है, तो मैं कहूंगा 1 डायोप्टर इज नथिंग बट 1/मीटर। तो जो भी आंसर आएगा ना मेरा, क्या चीज का? पावर ऑफ लेंस का। जैसे मैं उसको रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा डायोप्टर में, राइट। अगर मेरा फोकल लेंथ, अगर कोई कहता है कि आपका पावर +2 है और पूछे कौन सा लेंस लगाते हो आप, तो पावर प्लस मतलब फोकल लेंथ प्लस, और फोकल लेंथ किसका प्लस है? कॉन्वेक्स लेंस। सर मेरा पावर 2.3 है, 4.4 है, क्योंकि आप लोग मायोपिक हो। मायोपिक का मतलब होता है आपको दूर का नहीं दिखता है। रेक्टिफाई करने के लिए कौन सा लेंस डॉक्टर प्रिस्क्राइब? कॉनकेव। इसलिए जब आप डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन लेकर किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, तो वो कहता है अरे यार आपका तो पावर माइनस में है, और कोई कहता है मेरा प्लस में है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, दोनों का डिफेक्ट अलग है। अगर आपका पावर नेगेटिव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो आप कौन सा लेंस लगाओगे? बिकॉज F नेगेटिव इंडिकेट्स द लेंस नेचर शुड बी कॉनकेव लेंस, ठीक है। और न्यूमेरिकल कैसा छोटा सा आएगा? आपको फोकल लेंथ दे देगा 50 सेंटीमीटर, कोई साइन नहीं है तो प्लस है यहाँ, राइट। फाइंड पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला 1, बिल्कुल स्लो चलो। सर F कितना? बिल्कुल 50 सेंटीमीटर। मैंने अभी अभी आपको बताया पावर ऑफ लेंस को कैलकुलेट करने के लिए आप पहले मीटर में जाओगे, मैं सेंटीमीटर में हूं, सेंटीमीटर से मैं अब कहां चला गया? तो 1 तो अपनी जगह है, मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो ये जो 50/100 है, ये मेरा किसमें आ चुका? मीटर। यानी कि इनडायरेक्टली में 1/m में आ गया, बिकॉज ये मीटर में है, ऊपर 1 है, और 1/मीटर को क्या कहते हैं? अभी अभी बताया, डायोप्टर। आप आ गए डायोप्टर में। अब आपको मैथ्स करना था, 100 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर इज 2 डायोप्टर। प्लस है तो नेचर ऑफ लेंस पूछ लेगा तो क्या बता दोगे? कॉन्वेक्स लेंस। सो ये जो मैंने अभी ब्रीफ आउट किया, दैट इज अपन ने मिरर का पूरा गेम खेल लिया था,
we have understood a basic of refraction, then मैंने लेंस की गाइडलाइन दी, स्नेल्स लॉ के बारे में बताया। एग्जाम्स की बात करें अगर अपन तो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से एक बार देख लेना बिफोर गोइंग टू द एग्जाम्स दैट कॉन्केव मिरर बॉस था, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस बॉस है। स्नेल्स लॉ पे क्वेश्चन आएगा तो sin I upon sin R is always a constant. There are two types of refractive index, एक absolute यानी कि refractive index जैसे दे दिया तो आप समझ लीजिए वो absolute है, यानी कि मेरा बॉस वैक्यूम है और न्यूमरेटर वैक्यूम है, डिनोमिनेटर जिससे भी कंपेयर जहां भी जा रहा है, जितना ज्यादा RI आएगा आप समझ लीजिए उतना कम स्पीड में आप मूव कर रहे हो दूसरे मीडियम में एज कंपेयर टू वैक्यूम। रिलेटिव में चेंजेस होगा, जहां जा रहे हो वो डिनोमिनेटर में आएगा उसका स्पीड, और जहां से निकले हो वो न्यूमरेटर में आएगा। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम, रिफ्रैक्टिव मतलब रिलेटिव of one medium with respect to another is always reciprocal. अगर glass with respect to alcohol 2 है तो alcohol with respect to glass 1/2 लिखेंगे। फिर हमने आपको लेंस के बारे में बता दिया। Then I have guided you the power of lens. Power of lens is nothing but reciprocal of focal length. फोकल लेंथ सेंटीमीटर में अगर है तो मीटर में जैसे ही जाते हैं तो वी इनडायरेक्टली गो टू डायोप्टर बिकॉज 1/मीटर इज डायोप्टर। अगर मेरा पावर प्लस में आया तो लेंस है कॉन्वेक्स, अगर माइनस में आया तो कॉन्केव। साइन कन्वेंशन को याद करने का तरीका, अगर मिरर याद है तो यू कभी भी परेशान मत होना, अगर दिया हुआ है आगे नेगेटिव लगाएंगे। कॉन्केव मिरर का एफ क्या था रिकॉल कर लो, दैट इज नेगेटिव, तो कॉन्केव लेंस का भी नेगेटिव। खत्म। कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, जैसे ही वर्चुअल वर्ड आया लेंस में तो वी नेगेटिव, ये भी खत्म हो गया। वर्चुअल आया तो एच आई ऑलवेज पॉजिटिव, एच ओ ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन प्लस मिरर में आए या लेंस में आए ऑलवेज वर्चुअल। मैग्निफिकेशन नेगेटिव दे दे it will be real. So just help it out. I tried to guide you for your exams. Go through this slowly. Hope you'll be able to attempt all your questions for your upcoming exams with this thought. Thank you. Just go through this, and if you like this video, just subscribe and forward this. Wishing all Vidyaashram students especially a very all the best, and thank you for watching my video. Thank you everyone.